Assalamualaikum students. Welcome in the class of environmental chemistry, and today we are going to discuss neutron activation analysis of environmental samples. Neutron activation analysis, this is actually highly selective and expensive method, uh, and this is sensitive multi-element analytical technique used for both qualitative and quantitative analysis of major, minor, trace and rare elements. This can be used actually for the qualitative and quantitative analysis of the elements. और देखें इसमें हमें ये है कि अगर हमने pollutants को determine करना है, for example, even if they are present in the trace amount, but they are harmful for the environment, for the human beings, for the living beings. So neutron activation analysis actually it can help in the determination of these elements even if they are present in minor amounts. लेकिन ऑफ कोर्स ये एक्सपेंसिव है और इसके अलावा इसका जो इंस्ट्रूमेंटेशन है उसको ऑपरेट करने के लिए भी बहुत ही एक्सपर्ट किस्म के एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है और इसके अलावा ज़ाहिर है इसके लिए हमें स्पेसिफिक इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है बिकॉज दिस विल इंक्लूड न्यूक्लियर ट्रांजिशंस. इसमें न्यूक्लियर ट्रांजिशंस होंगी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस नहीं होंगी. So this is harmful as well if these nuclear, as a result of nuclear transitions, the radiations which will be evolved, they can have harmful effects on the person which is dealing. तो इसके लिए फिर हमें प्रॉपर जो इक्विपमेंट है प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीई में पीपीईज यूज करने पड़ते हैं. अच्छा जी, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस इट वाज डिस्कवर्ड इन 1936 बाय हैवेसे एंड लीवी who found that samples containing rare earth elements became highly radioactive after exposure to a source of neutrons, and this observation led to the use of induced radioactivity for the identification of elements. So these were the scientists who discovered this, that is Havese and Levy in 1936. उन्होंने इस टेक्निक को डिस्कवर किया और उन्होंने ये देखा कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं दे बिकम हाईली रेडियो एक्टिव अगर हम उन्हें न्यूट्रॉन के साथ उनका इंटरेक्शन करवाएं और इस तरह से एक तरह की हम उनके अंदर एक इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं और इस तरह विच कैन हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन एलिमेंट्स. Neutron activation analysis is significantly different from other spectroscopic analytical techniques. जो दूसरी स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिटिकल टेक्निक्स हैं उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस यूज करते हैं जबकि न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस में न्यूक्लियर ट्रांजिशंस होती हैं. किसी भी न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए स्पेसिमेन को एक सूटेबल इरेडिएशन फैसिलिटी में रखा जाता है and it is then bombarded with neutrons. इससे क्या होगा? This will create artificial radioactivity of element present. Following irradiation, the artificial radioisotope decay with emission of particles or more importantly gamma rays. ठीक है, अब irradiation के बाद जो artificial radioisotope ज़ाहिर है वो जो artificial radioactive होगा वो मेटास्टेबल होगा, वो स्टेबल नहीं होगा, वो डिके होगा उसका विद द एमिशन ऑफ मोर इम्पोर्टेंटली गैमा रेज विच आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट फ्रॉम विच दे आर एमिटेड. ठीक है, तो इस तरह से जब हम इराडिएशन करवाएंगे किसी अननोन एलिमेंट की तो वो एक आर्टिफिशियल एलिमेंट प्रोड्यूस करेगा और वो आर्टिफिशियल एलिमेंट फिर डिके हो जाएगा गैमा रेज. अब गैमा रेज जो हैं जो वो एमिट करेगा दीज विल बी करेक्टरिस्टिक ऑफ द एलिमेंट और इस तरह से वो एलिमेंट जो है पहचाना जाएगा. ठीक है, अब वो एलिमेंट अगर सैंपल के अंदर फॉर एग्जांपल प्रेजेंट है ट्रेस अमाउंट में भी तब भी उसकी आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिफिकेशन हो जाएगी.
Neutron activation analysis is a nuclear process, and this is used for the determining concentration of elements in a vast amount of materials. Neutron activation analysis allows discrete sampling of elements as disregards the chemical form of sample. ठीक है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी इससे हम क्या कर सकते हैं कि एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बेशक वो किसी भी केमिकल फॉर्म में प्रेजेंट हो, because it focus only on the nucleus. This method is based on neutron activation and therefore requires a source of neutrons. The sample is bombarded with neutrons, causing the element to form radioactive isotopes. ये बात हमने previous slide पे भी discuss कर चुके हैं. The radioactive emission and radioactive decay paths for each element are well known. अच्छा, अब ये actually इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, ठीक है? तो कोई भी एलिमेंट है, उसका रेडियो एक्टिव एमिशन और रेडियो एक्टिव जो उसके पाथवेज हैं, दीज आर वेल नोन, ये पहले से पता होते हैं और वो कंप्यूटर के अंदर फीड होते हैं, ठीक है? तो अब ये होता है कि जब हम ने सैंपल के अंदर कोई अननोन एलिमेंट जो है वो उसको क्वालिफाई करना है या उसको क्वांटिफाई करना है, तो उसमें एक्चुअली ये कि वो वही वो अपनी करेक्टरिस्टिक रेडिएशंस यानी गामा रेडिएशंस एमिट करेगा और इस तरह से वो पकड़ा जाएगा, आप कह सकते हैं वो पहचाना जाएगा by the comparison of these radiations with the radiations which are already present in the data bank, जो कि डेटा बैंक में प्रेजेंट होता है। और ये इतना सेंसिटिव ये मेथड है कि फिंगरप्रिंट के तौर पे ये रेडिएशंस एक दूसरे के साथ मैच करेंगी, ठीक है, और इस तरह से बहुत ही एक्यूरेटली एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिफिकेशन हो पाएगी। Using this information to study the spectra of the emission of radioactive sample, and we can also determine the concentration of element within it. इसके जरिए हम एलिमेंट की कंसंट्रेशन को डिटरमिन कर सकते हैं। A particular advantage of this technique is that it does not destroy the sample. ये sample को destroy नहीं करता, non-destructive है, and thus has been used for analysis of works of arts and okay, historical artifacts. So this is another advantage of this technique, which is outside the scope of our course, but just for general knowledge. This technique, this is also used uh, for the analysis of works of arts and historical artifacts, और ये जो है ना इसकी बड़ी वैल्यू है इस वर्क की। Okay, neutron activation analysis can also be used to determine the activity of a radioactive sample. तो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल की एक्टिविटी डिटरमिन करने के लिए यूज किया जा सकता है। दिस इज अ वेरी सिंपल प्रिंसिपल ऑफ द न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। आप देख सकते हैं ये हमारे पास इंसिडेंट न्यूट्रॉन है और ये टारगेट न्यूक्लियस है, ठीक है, और जब ये न्यूट्रॉन इस टारगेट न्यूक्लियस से टकराता है तो ये हमारे पास इसमें फिशन या फिशन का प्रोसेस जो है, यानी रेडियो एक्टिविटी क्रिएट हो जाती है, ठीक है, और आप देख सकते हैं कि ये टारगेट न्यूक्लियस को जब बम्बार्ड किया जाता है इंसिडेंट न्यूट्रॉन से, तो इसके अंदर हलचल मच गई है। एनीवेज, तो ये कंपाउंड न्यूक्लियस है। अब इसके बाद ये चूंकि अनस्टेबल हो जाएगा ये कंपाउंड न्यूक्लियस, और ये फिर करेक्टरिस्टिक गामा रेज एमिट करेगा, राइट। और फिर ये देखें ये अगेन रेडियो एक्टिव, ये बीटा पार्टिकल्स भी एमिट कर सकता है, और इसी तरह ये डिलेयर्ड गैमा रेज हैं, यानी ये फॉरन गैमा रेज निकल सकती हैं और ये उसके बाद भी निकल सकती हैं। अब बीटा पार्टिकल निकल सकती हैं और ये प्रोडक्ट न्यूक्लियस जो है बन सकता है। अब दिस इज एक्चुअली अ वेरी सिंपल एंड जनरल मैकेनिज्म, लेकिन अगली स्लाइड पे हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि किस तरह एलिमेंट्स को बम्बार्ड किया जाता है न्यूट्रॉन से, और गैमा रेज और बीटा पार्टिकल्स के एमिशन से किस तरह वो नेक्स्ट एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दिस इज इट। अब इसमें देखें, दिस इज द न्यूट्रॉन सोर्स, दिस इज द टारगेट न्यूक्लियस विच इज कोबाल्ट 59, ठीक है। अब ये कोबाल्ट का ऊपर एटॉमिक मास दिया हुआ है, ठीक है, एंड दिस इज कोबाल्ट, और डेफिनेटली इट हैज स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर। अच्छा जी, अब व्हेन इट विल कैप्चर न्यूट्रॉन,
it will be converted into cobalt 60 which is metastable। यानी अब एटॉमिक मास इसका आप देख सकते हैं चेंज हो गया, 59 से 60 हो गया, लेकिन स्टिल दिस इज कोबाल्ट पर दिस इज इन मेटास्टेबल फॉर्म एंड दिस इज एक्साइटेड न्यूक्लियस। और अब ये गैमा रेडिएशन जो है वो एमिट करेगा विच विल बी करेक्टरिस्टिक ऑफ कोबाल्ट। ठीक है, तो अगर किसी सैंपल में कोबाल्ट प्रेजेंट है और उसकी हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है और उसके ऊपर हम न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस परफॉर्म करें, तो अब ये जो गैमा रेडिएशंस ये एमिट करेगा, इन गैमा रेडिएशंस को चेक किया जाएगा सिस्टम के अंदर जो ऑलरेडी गैमा रेडिएशन का रिकॉर्ड है कोबाल्ट का, और अगर ये मैच कर जाए 100% फिंगरप्रिंटिंग के तौर पे तो हम कहेंगे कि सैंपल के अंदर कोबाल्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब इस तरह से हम मतलब कोई भी हार्मफुल जो एलिमेंट है जो एनवायरमेंटल सैंपल के अंदर भी प्रेजेंट है उसकी भी इसी तरह से आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। अच्छा जी, देन वी विल हैव इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन, और इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन से जो कोबाल्ट 60 मेटास्टेबल था, ये कोबाल्ट 60 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद ये रेडियो एक्टिव डिके होगा विद द एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, अब बीटा पार्टिकल्स के एमिशन से क्या होगा कि ये निकल 60 विच इज मेटास्टेबल, ठीक है, एंड दिस इज एन एक्साइटेड न्यूक्लियस, राइट। और अब ये किस तरह से स्टेबल होगा, निकल 60 जो मेटास्टेबल में है, दिस विल अगेन अमिट गैमा रेडिएशन। अब ये वाली जो गैमा रेडिएशंस हैं जो निकल ने अमिट की हैं, वो इन गैमा रेडिएशन से जो कोबाल्ट ने अमिट की हैं उनका पैटर्न जो है वो निकल का स्पेसिफिक होगा और कोबाल्ट का स्पेसिफिक होगा। इस तरह से हम निकल और कोबाल्ट के दरमियान डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर यहाँ पर देखें ये इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन होगी और फिर ये निकल मेटास्टेबल फॉर्म से निकल 60 यानी स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। तो ये इस तरह से ये स्टेबल न्यूक्लियस इसका क्रिएट होगा निकल का। अच्छा जी, अब इसमें ऐसे है कि जो कोबाल्ट है उसका एटॉमिक नंबर होता है 27। ठीक है, और यहाँ पर ये जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है कोबाल्ट का विच इज हैविंग एटॉमिक मास 60 एंड एटॉमिक नंबर 27, जब ये एक बीटा पार्टिकल एमिट करेगा तो क्या होगा कि एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में उसकी कन्वर्जन हो जाएगी, और जब ये न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में कन्वर्जन होगी तो एटॉमिक नंबर 27 से हो जाएगा 28 विच इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ निकल। तो इस तरह कोबाल्ट जो है वो निकल के एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं जो कि आपने अर्ली क्लासेस में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी ये इस तरह के रिएक्शंस न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़े हुए हैं कि जब भी एक बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और एटॉमिक नंबर एक दर्जा बढ़ जाता है। इस तरह ये कोबाल्ट का एलिमेंट निकल में कन्वर्ट हो जाता है, और निकल ये 60 मेटास्टेबल फॉर्म में होता है और फिर दोबारा से by internal transformation and by the emission of gamma radiation it will converted into stable nickel nucleus. Thank you very much for your attention. I hope that you have enjoyed this lecture. If you have understood, please subscribe, like and share. Allah Hafiz.